Hello students, I Dr. Sarwar Shah welcome you on the platform of Education Law Academy. And the last session we discussed about the vacancies, number of vacancies, examinations and overall strategy of judicial preparation. In today's session especially we discuss how to prepare for PT. How to prepare for PT examination because it is the first and foremost hurdle. Generally what happens कि हम पूरा सिलेबस फिनिश कर लेते हैं और पीटी क्वालिफाई नहीं होता है. तो पीटी क्वालिफाई करने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, हम उसके ऊपर आज एक इस ब्रीफ सेशन में एक स्ट्रेटजिक या उसको प्रायोरिटाइज कैसे करना है आपको, वो हम करेंगे इस सेशन के अंदर में. जैसे आप देख रहे हैं कि दिल्ली जुडिशियल सर्विस का पीटी स्पेशल सेशन है ये, और लास्ट सेशन में हमने आपको बताया था कि दिस एग्जामिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 phases या 2 stages. One is PT exam, I mean की preliminary test, and the other one is written exam. Written exam means कि consisting mains examination plus interview or viva voce, consisting of 150 marks. And most likely the paper is in this month only, on 27th of March. बहुत ज़्यादा दिन भी नहीं बचा है हमारे पास में. तो इस शॉर्ट टाइम में कैसे हम प्रिपरेशन करेंगे, हम उसको लेकर के डिस्कस करते हैं आज इसको. ये आप देख सकते हैं, यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं कि कौन कौन से स्पेशल इंस्ट्रक्शंस है और सिलेबस अब देखें इसमें से कि मेनली फ्रॉम दिस सेक्शन इस सिलेबस एंड स्कीम फॉर कंडक्ट ऑफ द एग्जामिनेशन. डेली जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इन 2 successive stages. द फर्स्ट वन इज दैट डेली जुडिशियल सर्विस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव टाइप with 25% negative marking for selection for the men's examination written and Daily Judicial Service Men's Examination written plus interview of selection of candidates for calling for viva voce. So we mainly discuss today prelim syllabus. See the important section in prelim syllabus, क्योंकि सबसे पहले जरूरी यही है कि the preliminary examination will be a screening test of qualifying nature and will consist of one paper of multiple choice questions carrying maximum of 200 marks. In the prelim examination, questions on general legal knowledge and aptitude of the candidate's power of expression, flair in English, knowledge of objective type legal problem and their solutions, covering the Constitution of India, the Code of Civil Procedure 1908, the Code of Criminal Procedure, Indian Penal Code, Indian Contract Act, Limited Liability Partnership Act, the Arbitration and Conciliation Act, the Indian Evidence Act, the Specific Relief Act, Limitation Act, the Protection of Children from Sexual Offences Act, यानी कि POCSO, and the Commercial Courts Act 2015 will be included. Minimum qualifying marks in the prelim examination shall be 60% for general category and 55% for reserved categories, that is scheduled caste, scheduled tribes, and eligible categories of person with disabilities as specified for this service. However, the number of candidates to be admitted to the men's examination written will not be more than 10 times the total number of vacancies of each category advertised, provided in case a candidate secures marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for men's exam. Then all such candidates who have secured marks equal to the marks secured by the last candidate shortlisted for men's exam shall also be shortlisted for the main examination, irrespective of the fact that by including such candidate, the number of candidates shortlisted for men's examination written exceeds the prescribed limit of 10 times the number of vacancies in each category. So we'll discuss one by one. First, see these important acts. And thereafter, the total number of candidates called for men's examination, that is almost 10 times. If we multiply 123 into 10, so just imagine it is almost 1000 plus. I mean 1000 plus candidate would be selected for written examination for men's examination. That generally happens in all competitive exams, be it UPSC or some other state PCS
or even PCSJ of other states. So let's see. And in that condition, कि now there is a bit confusion in this para कि in case अगर मान के चलिए कि टोटल 10% ही सिलेक्शन होना है और 10% में से अच्छे खासे लड़के ऐसे हैं कि जिनका इक्वल मार्क्स है. इक्वल मार्क्स का मतलब कि फॉर एग्जांपल कि अगर 123 में किसी का 123 मीन 150 में अगर सपोज कर लेते हैं कि मेरिट गई है 90 या 95, तो हो सकता है कि 95 वाले बहुत सारे लड़के हों, 95 वाले बहुत सारे लड़के हों, यानी कि 10 टाइम जो कॉलिंग लिमिट है वो एक्सीड कर रही है. अगर वैसे लड़कों को कंक्लूड किया जाए तो या इंक्लूड किया जाए तो वैसे कंडीशन में बाय डिफॉल्ट वो नंबर एक्सीड कर जाएगा, लेकिन ओवरऑल कैप 10% का ही रहेगा. क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग. पहले इंपॉर्टेंट एक्ट की बात हम करते हैं कि इंपॉर्टेंट एक्ट कौन कौन से हैं जिसके ऊपर हमारा स्पेशल फोकस होगा. क्लियर है? और ये मेंस एग्जामिनेशन है, मेंस एग्जाम के ऊपर हम एक स्पेशल सेशन करेंगे और उसमें हम बिल्कुल चीज़ों को एलिबोरेट कर रहे होंगे कि किस सेक्शन पे आपका फोकस कैसे होना चाहिए. इस ब्रीफ सेशन में जैसा कि पीटी स्पेशल सेशन है तो हाउ टू क्वालिफाई पीटी इन अ वेरी प्रायोरिटाइज और स्ट्रेटाइज्ड वे. अदरवाइज इनिशियली आई टोल्ड यू कि जनरली व्हाट हैपेंस कि दो वी हैव स्टडीड अ लॉट, बट व्हाट एग्जैक्टली शुड बी स्टडीड, व्हाट एग्जैक्टली ought to be studied, we don't know. So therefore we face problem time and again in solving PT questions. एक्ट के अलावा और एक्ट में क्या रीड करना है उसको, और प्लस मॉक टेस्ट का क्या रोल होता है, उस एक्ट के अंदर स्पेसिफिकली कौन सी चीजें पढ़नी है, क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है टाइम बाउंड मैनर में, हम इस ब्रीफ सेशन में ये करेंगे. मेंस को लेकर के जैसे आप देख रहे हैं कि एक एक्सक्लूसिव सेशन हम लोग करेंगे, लेकिन जैसे कि एक ब्रीफ में देख लें आप कि जनरल लीगल नॉलेज प्लस लैंग्वेज 250 मार्क्स का है, सिविल लॉ 200 मार्क्स एंड सिविल लॉ 200 marks and criminal law it is 200 marks. So to see the total number of marks 200 यानी कि 850 plus 150 interview. So the total number consists of 1000 marks. यानी कि merit gets determined with the total number of 1000. Okay. So let's see. This section will deal in detail. Will be detail. So we are especially talking of PT. No, PT means ki aptitude. In addition to aptitude, there is English. Okay. So English ke, as I told you, ki at least you need to have command over the language. At least you need to have a command or grip over the language, because unless you have a good English, unless you have a command over this language, you won't be able to qualify this exam. और इतनी तो बेसिक चीज़ आप सबको पता ही होगी क्योंकि ये एग्ज़ाम सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही कंडक्ट होता है. आपके पास ऐसा सच ऑप्शन नहीं है. देयर आर सम स्पेसिफिक जुडिशियल एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, वेयर एग्जाम्स आर मेनली कंडक्टेड इन इंग्लिश ओनली. लाइक NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, entrance examination for LLB is conducted in English only, though you are permitted to write in Hindi also once you get admission into the regular courses. लेकिन टेस्ट आपका सिर्फ इंग्लिश में ही होता है. तो सर्टेन स्टेट्स एक्सेप्शन है और लैंग्वेज जरूरी है. जैसा कि इनिशियली हमने देखा कि आपका पीटी के साथ साथ मेंस में भी 150 मार्क्स का आपका सिर्फ लैंग्वेज है, जिसमें आपका प्रेसिज राइटिंग, आपका वोकैब, आपका बेसिक ग्रामर, उसके अलावा कि कुछ ऐसे और सिमिलर नॉलेज इंग्लिश का होना जरूरी है आपके लिए. क्लियर है? तो लैंग्वेज के ऊपर तो कमांड आपका होना ही चाहिए. लैंग्वेज में जैसे कि द बेसिक कंसेप्ट है इंग्लिश का, बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश, ये तो आपका बेहतर होना ही चाहिए. बेसिक कंसेप्ट ऑफ इंग्लिश आपका बेहतर होना चाहिए. एज आई टोल्ड यू कि इंक्लूडिंग प्रेसिज राइटिंग, शॉर्ट एसे राइटिंग, बेसिक ग्रामर, सम लीगल टर्मिनोलॉजी और बेसिक vocabs. So these are the basic concept of English. And now we move to general knowledge. So general knowledge simply indicates the issues of current affairs
करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल प्लस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस. इट सिंपली इंडिकेट्स व्हाट इज हैपनिंग इन एंड अराउंड यू. जैसे मान लीजिए कि यूक्रेन का इश्यू हो गया, तो जाहिर सी बात एक बर्निंग इश्यू है और उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यूक्रेन की बाउंड्री क्या है, कुछ यूक्रेन का अगर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है तो वो क्या है. तो यानी कि एक ओवरऑल ब्रीफ रीडिंग से या एक बिल्कुल सिस्टमेटिक रीडिंग से आपका ये सेक्शन पूरा हो जाता है. नाउ वी मूव टू सम अदर इंपॉर्टेंट एक्ट्स that can shoot a very integral part of your PT preparation. So first we discuss about the Indian Constitution. Indian Constitution, and second one is procedural law. Procedural law, and third one is objective law. Objective law or substantive law. Or substantive law. And the rest will follow. Rest will follow your preparation. शॉर्ट टाइम में कैसे अप्रोच करेंगे ये जरूरी है. सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाउंटेन हेड या फाउंडेशन ऑफ ऑल द एक्ट्स, कोड्स, लेजिस्लेशंस, लॉज, etc. So unless you have a basic understanding or basic conceptual clarity regarding the constitution, you will be facing problem in dealing with questions. तो सबसे पहले कंस्टिट्यूशन है. कंस्टिट्यूशन में क्या क्या हम पढ़ते हैं जैसे देख लेते हैं एक बार. बेसिकली कंस्टिट्यूशन में आपका हो गया, जैसे सपोज कर लीजिए कि टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस के मीन्स की पार्ट्स and total number of schedules. As everyone knows, originally there is 395 articles, जो 395 have been repealed. So as of now, as per the existing constitution, the number of total article in constitution is 394. And see the parts. So part is 25. Initially it was 22 only. So what are the three additions that you need to focus on? What are the three additions that you need to focus on? And the third one is the total number of schedules. So originally it was 8 and now it has become 8 plus 4, 12. So the total number of schedules in constitution is 12. और 12 में देखेंगे कि जो 4 एडिशन है, you need to especially focus on these 4 additions. Hopefully you are enjoying this class. और जो चीज़ें बता रहा हूं मैं आपको, आप इसको लेकर के बिल्कुल स्टिक रहें और फॉलो करें आप इसको, अगर आप श्योर पीटी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो. क्लियर है? जो एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली वो आर्टिकल की जो रिसेंटली ऐड हुए हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से टाइम टू टाइम ऐड होते रहे हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर पूछ दिया आपसे कि इस प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट. A number of options are there. कि preamble can be amended or not. Preamble can be amended or not. और preamble have amended once, twice, thrice, 4 times या none of these. तो कुछ बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए आपको. तो स्पेशली जो एडिटेड पार्ट है, एडिटेड पार्ट मीन्स की 395 से ऊपर जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के मीन्स के स्पेशली जो शेड्यूल्स हैं, फोकस करें शेड्यूल्स के ऊपर में. जो टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इज 12. तो 12 में से जो लेटेस्ट 4 एडिशन है, वो 4 एडिशन कौन कौन से हैं, प्लस जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जो ओरिजिनली 22 थे एंड नाउ इट इज 25. सो जो 3 एडिशन है वो क्या है. गेटिंग इट? इन एडिशन टू दिस, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया आपका. इन एडिशन टू इट, कॉन्स्टिट्यूशन की एक बार फुल फ्लेज रीडिंग आपकी जरूरी है. कॉन्स्टिट्यूशन की आपकी फुल फ्लेज रीडिंग जरूरी है. एंड सेकेंड थिंग, यूनियन एंड स्टेट्स का रिलेशन, यूनियन एंड स्टेट्स का रिलेशन, और यूनियन और स्टेट से जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनका जानना जरूरी है आपके लिए. क्लियर है?
इसके अलावा जो इनिशियली जो आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक है, which is considered to be the very foundation of the Constitution, which is considered to be the very foundation, the very fountainhead of the Constitution, because fundamental right, fundamental duties, citizenship, union and states, directive principle of state policy, all are part of these articles, means कि from 1 to 51. ये बिल्कुल रिगरस आप स्टडी करें और कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पेशली फ्रॉम बेयर एक्ट के। आप कोई अगर ऑथेंटिक सोर्स पढ़ रहे हैं, कोई अगर स्पेशल कमेंट्री पढ़ रहे हैं टेट्स के, लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए, अप्रोप्रिएटली अप्रोच करने के लिए बेयर एक्ट पढ़ना आपका जरूरी है। क्लियर है? तो जैसे देखें, हमने ब्रीफली आपको बताया जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या स्टडी करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल इज 395. नाउ इट हैज बिकम मोर देन 450 total articles, including the amendments. And the second one is the total number of parts in the Constitution was once there was, originally it was 22, and now there is a 3 addition. So the total number of parts in the Constitution is 25. And the third one is the total number of schedule is 12. तो ओरिजिनली 8 थे, अब 12 हो गया। ये 4 एडिशन कौन सा है, इसको देख लें एक बार आप। एंड द थर्ड वन इज कि हाउ टू स्टडी इन अ वेरी प्रायोरिटाइज वे या इन अ वेरी सिस्टमेटिक वे। इसके लिए एक बार कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक रीडिंग आपकी होनी चाहिए, जो ऑलरेडी आपकी हो चुकी है। अगर आप इस बार के एग्जाम पे अप्रोच कर रहे हैं तो अंडरस्टूड है कि यू हैव गॉन थ्रू द सिलेबस इन वेरी डिटेल और इन वेरी कम्प्रिहेंसिव मैनर। तो कम्प्रिहेंसिव का मैनर का मतलब कि वंस यू रीड और वंस यू स्टडी वेरी कम्प्रिहेंसिवली, सो बिकमिंग चूजियर or rather कि you be able to choose a very correct portion related to examination. तो पहले से आपने पढ़ रखा है। अब आप देखेंगे कि आर्टिकल 1 से लेकर के 51 तक तो बिल्कुल थोड़ा होना चाहिए आपका। इसके साथ में देखेंगे आप यूनियन और स्टेट्स, और स्पेशली जहाँ पे यूनियन और स्टेट का रिलेशन इन्वॉल्व है। क्लियर है? क्योंकि दिल्ली क्या है, दिल्ली स्टेट नहीं है, दिल्ली स्पेशल यूटीज है, स्पेशल यूनियन टेरिटरीज है। और ऐसे कंडीशन में कुछ चीज़ें यानी कि जो नेशनल लेवल की हैं या यूनियन लेवल की हैं, उनका जानना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट जुडिशरी अगर हो तो वहाँ स्टेट पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन क्योंकि दिल्ली जुडिशरी इज़ लाइक स्टेट जुडिशरी एंड यूनियन जुडिशरी ऑल्सो, या इफ आई से कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल ब्लेंड ऑफ बोथ, तो गलत नहीं होगा। ओके, एंड कैसे अप्रोच करेंगे, तो आर्टिकल को आप अप्रोच करेंगे बेयर एक्ट से। क्लियर है? नो। अब अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि प्रोसीजरल लॉज में कौन कौन से हैं। प्रोसीजरल लॉ में हम देखते हैं कि मेनली कैसे लाइक सीआरपीसी 1973, सीपीसी 1908, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872. No. So these are the basic procedure. Procedural law के बारे में कहा जाता है कि if once you be able to understand the procedural law the way you should, तो समझिए कि half of the task is done. I still remember a quote that always I quote in class, that at one point of time William Shakespeare told, the right beginning of any task is supposed to be half done. Right beginning of any task is supposed to be half done. So it simply indicates that once you choose the right portion for your examination, so your preparation not only becomes easier and convenient, but there is a more probability to get into. So it doesn't matter how have you studied so far, what have you studied so far. It only matters that if you are very much committed to appear in this exam, I mean in the exam of 2022, so still you have enough time to qualify this exam. Though I am very hopeful that most of you have already studied the major portion of, or you have already covered from different sources, be it from coaching sources, online sources, or some offline materials, be it commentary or some other textbooks. But how to approach the questions in a very shorter span of time, it just simply separates you from the masses or from the rushes.
एक शेर याद आ रहा मुझे शाद अजीम आबादी का कि लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुंचते हैं दो एक, ऐ अहले ज़माना कदर करो नायाब न हो कमयाब है हम। और एक और शेर है उन्हीं का कि ये बस में मैं है, ये बस में मैं है, या कोताही दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। इट सिंपली इंडिकेट्स दैट competition is for competent one. If you're able to scrutinize, or if you're able to separate your mistakes or your deficiencies and able to strengthen what is already you have, तो समझिए कि सिलेक्शन आपका आसान हो जाएगा। बट द क्वेश्चन इज कि हाउ टू अप्रोच विथ राइट फोकस, विथ राइट ओरिएंटेशन, और अदर हाउ टू क्रिएट अ राइट परसेप्शन। तो इवेंचुअल और लेटेस्ट आवर में, यानी कि 11th आवर में आप कैसे स्टडी कर सकते हैं, तो अब देखें इसमें से। फॉर एग्जांपल इफ आई से सीआरपीसी, तो सीआरपीसी मीन्स की प्रोसीजरल लॉ, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973। एज बीइंग अ जज आपको पता होना चाहिए इसको, आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। आपके एलएलबी से लेकर के एलएलएम या जो भी आपका एजुकेशनल परफॉर्मेंस होगा उसमें ऑलरेडी आप कई बार इसको स्टडी कर चुका होंगे। आज हम एक नए तरीके से इसको स्टडी करते हैं कि शॉर्ट टाइम में हम क्वेश्चन कैसे अप्रोच करें। लेट्स सी, सबसे पहले आपने क्या कर लिया कि टोटल नंबर ऑफ, कुछ बेसिक चीजें हैं, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस। इसके बाद में आपने सेकंड देख लिया कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, दैट इज वेरी बेसिक थिंग्स। सो द फर्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट, डेट ऑफ पासिंग दिस लॉस। कभी कभी क्या होता है कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट तो हमको पता होता है, लेकिन किस दिन एग्जैक्टली ये पास हुआ था। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रिपेयर्ड, योर कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुल्ली प्रिपेयर्ड ऑन 26 नवंबर 1949, बट द डेट ऑफ एक्सक्यूशन और द कॉन्स्टिट्यूशन वाज फुल्ली इन्फोर्स्ड ऑन 26 Jan 1950, अ ईयर लेटर, ऑलमोस्ट अ ईयर लेटर। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों इन्फॉर्मेशन होना चाहिए आपको। यूजुअली क्या होता है कि डेट ऑफ इन्फोर्समेंट हमको पता है, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हमको पता है, लेकिन डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ड्राफ्ट वो हमको नहीं पता है। तो एक सिस्टमेटिक वे में एक बार आपको उसको भी देख लें। क्लियर है? सेकेंड वन इज जो इनिशियल स्टेज है। इनिशियल स्टेज का मतलब कि जाहिर सी बात है कि पहले तो एक बार आपने कंप्रिहेंसिव स्टडी किया ही होगा इसका, इनिशियली आपने कंप्रिहेंसिव स्टडी किया होगा। आगे हम कैसे करेंगे इसको, इसके रिवीजन में थोड़ा सा शॉर्टर कर लेंगे हम इसको रिवीजन में, यानी कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अब सवाल ये कि हम कैसे डिटरमिन करेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, हाउ टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट सेक्शन और द सेक्शंस पर्टेन टू आवर क्वेश्चंस या प्रोबेबल क्वेश्चंस, उसको कैसे हम अप्रोच करेंगे उसको। उसके लिए तरीका क्या है कि सबसे पहले आप क्या करें कि जो टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं इसके, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, आप इसे केयरफुली समझें इसको, क्योंकि यही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर लॉ में भी। आई मीन कि सीपीसी, सिविल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट में। एक्ट में और लॉज में क्या डिफरेंस है, एक्ट में और लॉज में, एक्ट में या कोड में क्या डिफरेंस है, ये छोटी छोटी चीजें होपफुली आपको पता होंगी। इस ब्रीफ सेशन में हम सब कुछ तो कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक जैसे कि एक स्ट्रेटजी सेशन है, इसलिए बता रहा कि अप्रोच कैसे करेंगे 11th आवर में। अब आपने क्या किया कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि फॉर एग्जांपल देयर आर टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स इज 37, 34, 35, व्हाटसोएवर बी इट, यू नो वेल। तो टोटल चैप्टर और चैप्टर को आपने बिल्कुल ऑर्डर में, बिल्कुल सिंक्रोनाइज वे में रिमेंबर करना शुरू किया। कभी कभी क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई से कि पुलिस, द स्पेशल पावर ऑफ अ पुलिस टू रजिस्टर FIR, everyone knows that under 154 it is given. In case police unable to lodge your FIR, police unable to lodge your complaint, in that condition what can you do? So the procedure you know already. यानी कि whenever there is a talk of power of a police, and options are given there, and one option is there that exceeds 200, like 204, 205, 202, section 202 or something alike. So one thing is clear, that the power of police is not given beyond 173. In general, the power of police is not given beyond 173
CRPC in general. Though some special power and exceptions are there, we are not talking about them. तो चैप्टर वाइज अगर आप रिमेंबर करते हैं तो इसका फायदा यह होता है कि आप एटलीस्ट यू एबल टू आइडेंटिफाई और रदर यू एबल टू एलिमिनेट द क्वेश्चन और ऑप्शंस इन अ क्वेश्चन इन अ वेरी स्मार्टर वे. फॉर एग्जाम्पल कभी कभी ऐसा होता है कि आउट ऑफ 4 ऑप्शन वी नो 2 ऑप्शंस. Often it happens we know 3 options. But for answering that question, 4 option information or the knowledge of those 4 options are very essential. So how to identify? Because definitely you are not going to miss that question. तो वैसे कंडीशन में क्या करेंगे स्मार्ट गेसिंग के लिए कि चैप्टर का जो एक सिंक्रोनी या एकदम जो चैप्टर की सिनर्जी है वो आपके लिए जरूरी है. क्लियर है? तो जैसा भी हमने बताया कि टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दैट ड्राफ्ट, डेट ऑफ एक्सक्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सो कॉल्ड की चैप्टर्स और चैप्टर में से जो स्पेशली जो रिलेटेड है, स्पेशल रिलेटेड है. जैसे आप मान लीजिए कि आपको बेल से रिलेटेड पूछ लिया गया, आपका बेल रिलेटेड प्रोविजन हो गया, जजमेंट रिलेटेड प्रोविजन हो गया आपका, और इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल मस्ट है आपका, क्योंकि इंट्रोडक्शन से क्वेश्चंस कई बार आपको सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं. यानी कि जो सेक्शन 2 का कंप्लीट डेफिनेशन है, बेलेबल ऑफेंस क्या है, नॉन बेलेबल क्या है, कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल क्या है, विक्टिम क्या है, चार्जशीट क्या है, पुलिस स्टेशन क्या है, SHO क्या है, जज क्या है, मजिस्ट्रेट क्या है, इंडिया क्या है, लाइक डिफरेंट थिंग्स. जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पार्ट है वो तो आपको बेहतर होना ही चाहिए. क्लियर है? हम आगे बढ़ते हैं. तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जो सभी जितने भी हम स्टडी कर रहे हैं प्रोसीजरल पार्ट का, बीट CRPC, बीट CPC और बीट IEA यानी कि इंडियन एविडेंस एक्ट, इन सब में से जो एक टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, फर्स्ट टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ द ड्राफ्ट, डेट ऑफ एक्सक्यूशन एंड इंपॉर्टेंट चेंजेस एंड इंपॉर्टेंट हेडिंग्स. और इंपॉर्टेंट हेडिंग कैसे होगा कि जब हम एक्सक्लूसिव सेशन इसे हम करेंगे, तो एक्सक्लूसिव सेशन में बताऊंगा आपको कि CRPC को आप कैसे स्टडी करें, क्योंकि इस ब्रीफ सेशन के अंदर में पूरे सिलेबस को माइन्यूटली कवर करना इम्पॉसिबल है मेरे लिए. गेटिंग इट? तो इसके लिए आप स्पेशल हमें रेफर कर सकते हैं कि जहां पे हम CRPC को लेकर के एक एक्सक्लूसिव सेशन है हमारा, उस सेशन को देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं कि मुझे इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको लेकर के आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे. आगे हम देखते हैं कि सर्टेन एडिशन है इसमें. सर्टेन एडिशन का मतलब कि जैसे कि जो रिसेंट अमेंडमेंट हो गया, जैसे आप देखेंगे 166A पहले नहीं था, 166A को बाद में जोड़ा गया. इसी तरीके से हम कहते हैं 326A, 326B, ये क्या है, इसको क्या जोड़ा गया. इस तरीके से हम देखते हैं कि 376 को लेकर के A से लेकर के E तक का है. ये क्लियर है? इस तरह का 226 का हो गया 226A, ये क्या है ये. तो जो डिफरेंट एडिशन है, न्यू एडिशन है, खास करके A, B, C, D के फॉर्म में, आप इसके ऊपर स्पेशल फोकस करें. अब आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ सेक्शन देख लिया है, टोटल नंबर ऑफ चैप्टर आपने देख लिया है, इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आपने देख लिए हैं, सिनर्जी ऑलरेडी आप एस्टेब्लिश कर चुके हैं. अब आपको क्या करना है कि ऐसे कंडीशन में इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ इंपॉर्टेंट एडिशन, और एडिशन सिंपली इंडिकेट्स दैट अब 326A हो गया, 326B हो गया. सो व्हाट 326A इज ऑल अबाउट, what 326B is all about. क्लियर है? और पनिशमेंट क्या है उसका, कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, नॉन कंपाउंडेबल है. सो दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू नो. कुछ इस तरह कंसेप्चुअल या एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन अगर आ गया कि फॉर एग्जांपल इफ समवन हैज कमिटेड अ क्राइम का मतलब कि कंसिस्टिंग ऑफ बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस. सो इन दैट कंडीशन हिज ट्रायल में बी कंडक्टेड in a cognizable way, in a non-cognizable way, in both way, or none of the following ways. So at least you need to apply your brain as per the as per the questions demand or questions requirement, and that definitely doesn't happen overnight. It takes time to develop in. Getting it? So let's see. ब्रीफली हमने बताया कि यानी कि सबसे पहले आपका जो मेन फोकस होगा, जो एरिया ऑफ फोकस होगा, वो होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन. एंड सेकेंड वन इज डीसी. द फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये हो गई, एंड सेकेंड प्रायोरिटी इज ए प्रोसीजरल लॉ. प्रोसीजरल लॉ में से स्पेशली CRPC, CPC, इंडियन एविडेंस एक्ट. सो वंस यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस 4 पार्ट्स,
या दिस 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर पीटी सिलेबस, तो समझिए कि हाफ ऑफ द टास्क हैज ऑलरेडी बीन डन along with your current affairs and aptitude और जनरल नॉलेज। और आगे याद रखें कि जैसे क्या है कि टोटल कंडीशन है कि एटलीस्ट यू नीड टू गेट डेट परसेंट, यानी कि 60% ऑफ द टोटल नंबर यू नीड टू क्वालिफाई, आई मीन यू नीड टू स्कोर। तो जैसा कि हमने कहा कि अभी इन 4 सेक्शन को मिलाकर के कॉन्स्टी, प्रोसीजरल लॉ ऑलरेडी 50% को हमने टारगेट कर लिया है। और यहां से क्वेश्चन अगर आप जिस तरीके से हमने बताया, अगर उस तरीके से आप स्टडी करेंगे तो रिमेंबर में दैट यू वोंट बी एबल टू मिस इवन अ सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ ऑल दिस। कुछ क्वेश्चन तो बहुत नॉर्मल नेचर के होंगे और कुछ क्वेश्चन जहां पे एनालिसिस की या एनालिटिकल एबिलिटी की जरूरत है, तो अगर आपने डीप स्टडी किया है तो आप उसको इंटर रिलेट कर पाएंगे। क्लियर है? आगे हम देखते हैं इसके अलावा कि कुछ ऑब्जेक्टिव लॉ। ऑब्जेक्टिव लॉ में क्या है, जैसे देखें, और इसके अलावा कुछ सिविल लॉ हमने देख लिया, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसके अलावा कि जो सीपीसी हमने ऑलरेडी किया है, सीपीसी में एक बार आप देख लेंगे टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड टोटल नंबर ऑफ रूल्स। क्लियर है? नो। और किस सेक्शन का किस ऑर्डर या किस रूल के साथ में क्या रिलेशन है, एक बार आप उसको देख लेंगे। यानी कि जो वे ऑफ सिनर्जी आपने डेवलप किया है प्रोसीजरल लॉ में, स्पेशली सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में, आप सेम फॉलो करेंगे इन केस ऑफ सीपीसी ऑल्सो, सिविल प्रोसीजर कोड। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको पता है कि नंबर ऑफ जो सेक्शंस हैं वो लिमिटेड हैं। यहाँ दिक्कत आपको नहीं आएगी, आपने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। अब आपको स्मार्टर वे में रिवीजन करना है। क्लियर है? और रिवीजन के अलावा आपको इंटर रिलेट करना है आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में, क्योंकि आपको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लॉ। And the judicial review is judicial activism. What Supreme Court does? The Supreme Court simply do कि by reinterpreting or by redefining the important feature of the Constitution, Supreme Court either declares a valid or ultra virus of the Constitution or so-called की ultra virus. Okay? So let's simply see the Contract Act and this CPC along with just imagine this arbitration law, limitation act and specific relief act including partnership act. So mainly जो एरिया ऑफ फोकस होगा, मेनली ऑफ एरिया ऑफ फोकस क्या होगा? द फर्स्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द सेकेंड वन इज प्रोसीजरल लॉ, how to prioritize or how to strategize your preparation. So the first one is Constitution, second one is procedural law, especially consisting this CRPC, CPC and Indian Evidence Act, and thereafter be it civil laws including CPC, this arbitration and etc. Some other objective laws or substantive laws. In addition to current affairs and English. So in a shorter duration of time you would be able to resolve your problem and would be able to approach number of questions in a very smarter or in a very significant way. आपने अप्रोच किया और 60% स्कोर आपने नहीं किया, फिर से आपको रीअटेम्प्ट करना होगा। तो ऑलरेडी मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपने स्टडी किया हुआ है पहले से। अब 11th आवर में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, ये चीजों को समराइज करना है आपको, अपने नोट्स के फॉर्म में, जैसा हमने बताया आपको। यानी आपने क्या किया कि फिर से एक बार और रिवाइज करवा देते हैं कि टोटल नंबर ऑफ चैप्टर के साथ में जो टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस हैं, इसके अलावा कि डेट ऑफ प्रिपरेशन एंड डेट ऑफ एक्सक्यूशन, इंपॉर्टेंट इंसर्शन या एडिशन, as I told you already. So by doing all these or by compiling all these in one go would be sufficient for your preparation. And moreover, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के लिए आप शॉर्ट में क्या कर सकते हैं
कि कोई भी आप कोई भी आप एनुअल मैगजीन आप उठा लें, कोई भी एनुअल मैगजीन आप उठा लें, जैसे पीडी आता है, पीडी 2 वॉल्यूम में आता है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, क्लियर है। उसके अलावा आता है अरिहंत का एनुअल करंट अफेयर्स, एनुअल जनरल नॉलेज, आप उसको लेके देख सकते हैं, या जो भी करंट अफेयर्स का सोर्स है आपका, आप उसको एक बार देख सकते हैं कि सर्टेन क्वेश्चंस वहां से भी आते हैं, क्लियर है। So I'm very hopeful that this brief session is very beneficial for you. You will be enjoying a lot. And for any problem or any difficulty, you can call me. You can call me or you can consult me on Mobishala. So I wish all the good luck for your exam. And soon we assemble with a new session on a specific topic, be it Indian Constitution or be it a particular part of the procedural law or a substantive or objective law. So study well, take care and good luck.